پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے موت کی سختیوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ یقیناً موت جب انسان کے پاس آتی ہے تو بہت ہی سختیوں اور کٹھنائیوں کے ساتھ آتی ہے، اور خصوصاً کافروں کے اندر سے، مشرکوں کے اندر سے جب روح نکلتی ہے، جو اللہ کے نافرمان گناہگار بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے جب روح نکلتی ہے یا نکالی جاتی ہے تو بڑے ہی دردناک طریقے سے نکالی جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، آسمان سے آئے ہوئے فرشتے ہاتھوں ہاتھ اسے لے لیتے، پھر آسمان سے لائے ہوئے کاٹ میں جو کہ نہایت ہی بدبودار ہوتا ہے، اس کاٹ کے اندر لپیٹ کر کے اس روح کو لے کر کے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بدبو کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی آسمان کے فرشتوں کو اس کی بدبو محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی خبیث روح، کوئی گندی روح آسمان کی طرف آ رہی ہے۔ پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامۂ اعمال کو سجین میں لے جا کر کے لکھ دو، اور اس کی روح کو دوبارہ پھر اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دو۔ چنانچہ فرشتے آسمان کے اوپر سے اس کی روح کو زمین پر پٹک دیتے ہیں، اس کے نامۂ اعمال کو سجین میں لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ ساتوں زمین کے نیچے پاتال، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاتال کے اندر سجین میں اس کے نامۂ اعمال کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھر اسے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے۔ نہلا دھلانے کے بعد جب اسے چارپائی کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر اسے اٹھا کر کے جب لوگ قبرستان کی طرف چلنے لگتے ہیں تو وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ گویا کہ اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ڈر لگا ہوا رہتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اپہرن کرتا اگر کسی کو اپہرن کر لے اور کوئی انجان جگہ میں لے کر کے جانے لگے تو یقیناً اس کے اندر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، اب ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے، کیا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ وہ ان سے سوال بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ دو۔ آج ایک انسان جب دنیا چھوڑ کے جانے لگتا ہے اور جب لوگ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کر کے چلنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آواز کو، جو یہ بولتا ہے، اس کی آواز کو صرف جن اور انسان ہی نہیں سن پاتے، باقی تمام مخلوقات سن پاتے ہیں۔ جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اگر ایک جن یا انسان اس کی آواز کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر لے جایا جاتا ہے قبرستان کے اندر، پہلے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر قبرستان میں قبر میں اتار کر کے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر مٹی ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جب لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اسے دفنا کر کے واپس ہونے لگتے ہیں
उस मैयत को लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है, उसके चलने की, उसके जूतियों की आवाज सुनाई देती है कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुंबे कबीले के लोग आए और मुझे दफन कर दिया, मिट्टी के नीचे दबा दिया, वो लोग वापस जा रहे हैं। सुनाई देती है उसको आवाज ही। फिर उसके बाद क्या होता है? दो फरिश्ते निकलते हैं कब्र के अंदर, एक का नाम है मुनकिर और दूसरे का नाम है नकीर। ये मुनकिर और नकीर ये कैसे फरिश्ते हैं जो बड़े ही खौफनाक हैं, बड़े ही भयानक हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं है। और अचानक अगर कोई एक ऐसी मखलूक को देख लेगा जिसकी शक्ल सूरत ही कुछ अलग है, जो अलग टाइप की, अलग तरह की मखलूक है, तो उसके अंदर का खौफ का हालत क्या होगा? एक ऐसी मखलूक जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है, बड़ा ही भयानक, बिल्कुल काले कलौटे, उसके दांत जो होंगे वो गाय के सींग की तरह, उसके दांत लंबे लंबे और बड़े बड़े होंगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी और नीली आंखें होंगी, और उनकी आवाज बड़ी ही गरजदार होंगी। जिस तरह बिजली कड़कती है, गरजती है, ऐसे ही गरजदार उसकी आवाज भी होगी। और ये फरिश्ते अपने दांतों से जमीन को अखेड़ते हुए बाहर निकलेंगे और आकर के ही उसे उठा के पढ़ा देंगे और उससे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि मर रब का बता, तेरा रब कौन है? 3 सवाल उससे किया जाएगा। पहला सवाल होगा, मर रब का बता, तेरा रब कौन है? मेरे भाई और दोस्तों, भला बताइए, एक इंसान जो सारी जिंदगी अपने रब की नाफरमानी करता रहा, जिसने कभी अपने रब को रब ही नहीं समझा, जिसने अपने रब की कभी इबादत ही नहीं की, जिसने अपने रब के अहकाम को कभी माना ही नहीं है, वो इंसान कैसे कह सकता है कि मेरा रब अल्लाह? चुनांचे वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो कहेगा हाय अफसोस, मुझे पता नहीं, मालूम, मुझे नहीं मालूम मेरा रब कौन है। क्यों नहीं जवाब दे पा रहा? इसलिए कि उसने उस रब के हुक्म पर जिंदगी गुजारी ही नहीं है, उसने उस रब के हकाम को माना ही नहीं है, उसने उस रब की इबादत की ही नहीं है। इसलिए वो कहेगा हाय अफसोस, मुझे नहीं पता कि मेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनों का बताओ, तेरा दीन क्या है? जो इंसान सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारा है, जिसको ना दीन से मतलब, ना शरीयत से मतलब, बल्कि उसने जिंदगी गुजारी है तो गैरों की मुशाबिहत इख्तियार करके गुजारी है। और जबकि नबी ने पहले ही फरमा दिया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई भी दूसरे कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। तो जो दूसरे कौम की मुशाबिहत इख्तियार करते हुए जिंदगी गुजारा है, यहूदियों की रविश पर चलता हुआ नजर आ रहा था, और ईसाइयों और दिगर कौम के उनके तर्ज तकल्लुम पर वही सारी चीजें उनके अंदर मौजूद थी, पाई जाती थी। आज वो इंसान कैसे कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, जबकि उसने इस्लाम को कभी समझा ही नहीं। तीसरा सवाल होगा, मन नबियों का बता, तेरा नबी कौन है, तेरा रसूल कौन है? चुनांचे जब उसने रसूल की सुन्नत को अपनाया ही नहीं है, जिसने हर हमेशा नबी की बातों के सामने अपनी बातों को ही आला और ऊंचा समझा है, जिसको ना नबी की सुन्नत से कोई परवाह ही थी इस दुनिया के अंदर, आज वो कैसे कह सकता है कि मेरा नबी या मेरा रसूल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दूसरी हदीस में है तो उससे पूछा जाएगा, बता उस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है, वो शख्स कौन था जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था? नहीं बताए। फिर वही कहेगा हाँ लादी, नहीं पता, अफसोस, मुझे नहीं मालूम कि मेरा दीन क्या है, मेरा नबी कौन है, मेरा रसूल क्या है, वो शख्स कौन है, मुझे कुछ भी पता नहीं, मालूम नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आसमान से आवाज आएगी,
एक पुकारने वाला पुकार करके कहेगा, एक मुनादी निदा लगाएगा, ऐलान करने वाला एक ऐलान करेगा कि उसने झूठ कहा, और क़यामत के दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही उसके कब्र के अंदर आग का बिछौना बिछा दो, आग का बिस्तर उसके कब्र के अंदर बिछा दो, और उसका जो लिबास होगा वो लिबास भी आग का उसे पहना दो। दुनिया के अंदर वो पैजामा कुर्ता पहना करता था, पैजामा कुर्ता आग का पहना दो, पेंशन अगर था पेंशन उसका पहना दो, लुंगी कुर्ता पहना करता था, लुंगी कुर्ता उसका आग का ही लिबास उसे पहना दो। फिर कब्र को हुक्म देगा, कब्र सुबह जाएगी, तंग हो जाएगी, एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ और दूसरी तरफ की पसलियां पहली तरफ आ जाएंगी। बिल्कुल ये पसली की हड्डियां एक तरफ की दूसरी और दूसरी तरफ की पहली तरफ इस तरह पसलियां हो जाएंगी। फिर पहले जन्नत की खिड़की खोला जाएगा, और जन्नत की खिड़की खोलने के बाद उसे दिखा दिया जाएगा जन्नत को। ये वो जन्नत है, वो जन्नत की रौनकों को देखेगा, वो जन्नत की खूबसूरती को देखेगा, वो जन्नत की नियामतों को देखेगा। कहा जाएगा यही वो जन्नत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तुझे इससे महरूम कर दिया। फिर जहन्नम की तरफ सुराख करके खिड़की खोल के दरवाजा खोल के जहन्नम दिखा दिया जाएगा कि दहकती हुई जहन्नम, वो आग की लपट है, वो आग की चिंगारियां है, और वो शोले भड़क रहे हैं, वो जहन्नम की गर्मियां है। वो जहन्नम को देखेगा और कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जहां पर तेरा ठिकाना होने वाला है, इसी जहन्नम में तुम्हें जलना है, इसी जहन्नम में तुझे जाना है। चुनांचे उसके बाद फिर क्या होगा, वो अभी कब्र के अंदर ही होगा कि एक और आएगा, वो ये तमन्ना करेगा, वो दुआ करेगा, ये आदमी ये मैयत ये तमन्ना करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह कभी भी क़यामत कायम ना करना, अल्लाह कभी भी क़यामत कायम ना करना। एक और बदसूरत इंसान आएगा जो बड़ा ही बदसूरत होगा, ये कब्र के अंदर पड़ा हुआ इंसान उसे देखेगा, कहेगा पूछेगा उससे क्या तुम कौन हो जो आए हो? वो कहेगा मैं ही तुम्हारा पूरा अमाल हूँ, तुमने दुनिया के अंदर जो अमाल किए थे वो सारे तुम्हारे अमाल मैं ही हूँ, तुम्हारे सारे पूरे अमाल मैं ही हूँ। एक और फरिश्ता आएगा जो वो भी बड़ा ही बदसूरत और काला कलुगा होगा, और वो अंधा होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, पहला होगा, वो गूंगा होगा, बोल नहीं पाएगा, हाथ में एक गर्ज होगा, लोहे का हथौड़ा होगा, ये लेकर के आएगा साथ में। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ये लोहे का हथौड़ा, ये गर्ज इतना वजनी होगा, इतना वजनी होगा कि नबी ने फरमाया अगर पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा होगा। इसी गर्ज से उसके ऊपर हथौड़े से मारा जाएगा, और जब उसे मारा जाएगा तो बिल्कुल वो मिट्टी हो जाएगा, और वो बिल्कुल जर्रा जर्रा हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। फिर दोबारा उसे जिंदा किया जाएगा और लगातार इसी गर्ज से उसे मारा जाएगा उस वक्त तक जब तक क़यामत बर्पा नहीं हो जाती। इतनी तकलीफ है मेरे भाइयों और दोस्तों, इसीलिए बड़े बड़े सहाबाए किराम ज़ारो कतार रोते थे कब्र को ख्याल करके। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसे अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत सुनाई है, एक मरतबा 10 मरतबा एक ही मजलिस में कहा उस्मान भी जन्नत, उस्मान भी जन्नत, उस्मान भी जन्नत, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। आज के बाद अगर उस्मान एक भी नहीं करेगा फिर भी जन्नत में जाएगा। मगर वो उस्मान जब कब्रिस्तान के से होकर के गुजरते थे और कब्र के पास जाते ज़ारो कतार होते और उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो जाती, भीग जाती थी, इतने रोते थे कि ये सबसे पहला स्टेज आखिरत का। अगर यहाँ अगर फंस गए तो समझ लीजिए बाकी जगहों में भी फंसना ही फंसना है, और अगर यहाँ से नजात मिल गई तो अगली मंजिलें भी हमारे लिए आसान कर दी जाए। फिर मारा जाएगा, क़यामत तक इसी तरह उसके ऊपर ही अज़ाब होता रहेगा। एक काफिर का
अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें उन फेहरिस्त में आने से बचाए। ये मुसलमानों से होते हैं, ये नमाजी होते हैं, ये रोजा रखने वाले होते हैं, ये सदका व खैरात करने वाले होते हैं, मगर इनका नाम मुनाफिकीन रखा गया है। तीन तरह के लोग होंगे कब्र के अंदर, एक काफिर मुशरिक, दूसरे मुनाफिकीन और तीसरे मोमिनीन। ये मुनाफिकीन का भी हाल इसी तरह होगा, इनसे भी जब सवाल किया जाएगा उसी तरह पूछा जाएगा। तो मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, मुसलमानों से होते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़े बड़े सहाबा भी डरते थे कि कहीं मुनाफिकीन की फेहरिस्त में हम भी तो नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ने से पहले एक सहाबी थे जिसका नाम शायद हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनको एक लिस्ट थमाई थी, एक लंबी फेहरिस्त मुनाफिकीन की दे दी थी कि ये फला 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 मुनाफिकीन। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि मुनाफिकीन मुसलमानों में कौन कौन है। बारहा उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, बारहा उस सहाबी से पूछा कि नबी ने जो नाम बताया है जरा हमें भी बता दो, लेकिन वो कहते नहीं, ये अल्लाह के नबी की अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं कर सकता, मैं किसी और को बता ही नहीं सकता। उमर फारूक जब कब्रिस्तान जाते तो पहले देखते कि वो सहाबियां कब्रिस्तान में मौजूद है या नहीं है। अगर देख लेते वो मौजूद है तो समझ जाते ये मुनाफिक का जनाजा नहीं है, तो उमर भी नमाज जनाजा पढ़ते। और अगर देखते वो सहाबियां मौजूद नहीं है तो उमर भी पलट करके वापस आए। इतना खौफ था उमर फारूक को कि मौत का वक्त जब आता है, आखिरी वक्त में उमर फारूक दुनिया छोड़ने वाले हैं, आंखों में आंसू है, बेटे को कहता है बेटा जाओ जाकर के उससे पूछो साहबे से कि नबी ने उसे क्या बताया, किनका नाम बताया। नाम को वो बताएंगे नहीं, बस इतना पूछ लेना कि उस लिस्ट में फेहरिस्त में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। इतना पूछ लेना कि कहीं मेरा नाम तो उस लिस्ट के अंदर नहीं है। बेटा जाता है, जाकर के हुदैफा से पूछता है कि अब्बा जान ने भेजा है, सिर्फ इतना बता दो कि मुनाफिकीन की लिस्ट में कहीं मेरे बाप का भी तो नाम नहीं है, कहीं उमर फारूक का भी तो नाम नहीं है। या अल्लाह, चुनांचे वो बता देते हैं कि नहीं उनका नाम नहीं। बेटा वापस आते हैं, खुशी के आंसू हैं आंखों में, बाप को आके बदला देता है कि इत्मीनान हो जाइए आपका नाम नहीं। चुनांचे बाप की आंखों में भी खुशी के आंसू आते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मुनाफिकीन के बहुत सारे औसाफ हैं। एक सूरह कुरान के अंदर सूरह मुनाफिकून ही उसका नाम रखा गया है। और मुनाफिकीन के बारे में कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गहरे में जाएंगे। सूरह बकरा के अंदर अभी शुरू हुआ है, अभी पहला रुकू के बाद ही मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू हो जाता है कि मुनाफिकीन के कुछ औसाफ ऐसे होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, इधर भी बातें करते हैं उधर भी बातें करते हैं। वो अपने आप को मोहतरम और बाइज्जत समझते हैं और दूसरे को ज़लील और हकीर समझते हैं, अपने को जन्नती समझते हैं दूसरे को जहन्नमी समझते हैं, अपने आमाल पर उन्हें बड़ा ही गुरूर और घमंड और बड़ा ही फख्र उनके अंदर होता है कि अब हमारे लिए जन्नत पक्की है। तो बहुत सारे औसाफ होते हैं, लेकिन उनका निफाक सीने के अंदर भरा हुआ रहता है, निफाक रहता है उसके दिल के अंदर, कीड़ा रहता है, दिल साफ नहीं रहता है, लोगों के अंदर माशरे के अंदर गड़बड़ भी करते हैं। सारे चीजें मौजूद हैं हदीस के अंदर, ये कुरान के अंदर भी कि कितने औसाफ हैं, तरह तरह के औसाफ हैं। वो वक्त नहीं है कि मैं वो सारी चीजें आपके सामने बयान करूं। उनकी एक सिफत ये भी होती है कि नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं। वैसा कानून को सारा कि जब नमाज में खड़े होते हैं तो बड़े सुस्ती के मारे हुए होते हैं कि नमाज कब खत्म होगी हम भाग जाए, बड़े सुस्ती के मारे हुए हैं। युराउन नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। बहुत तरह के औसाफ और सिफातें, यानी उनका अकीदा मजबूत नहीं होता है, अल्लाह के ऊपर अल्लाह के रसूल के ऊपर दीन से उनका सही मोहब्बत नहीं होती है, सही दीन उसके अंदर नहीं होता है मौजूद। अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदायगी करना वो नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम भी देखते हैं जुमा की नमाज जैसे खत्म होते हैं, कितने हम नमाज के सुस्ती के मारे हुए हैं। जुमा की नमाज खत्म होती है, बस इमाम के साथ 2 रकात पढ़ लिए, उसके बाद उठे चले गए।
यानी सिर्फ हम 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि जुमा के बाद 4 रकात हमें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। 4 रकात पहले कोई सुन्नत नहीं, जुमा से पहले कोई भी सुन्नत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया माफूक रहो, जो ताकत हो, जितनी मुयस्सर हो, 2 रकात नफल पढ़ो या 4 रकात पढ़ो या 6 रकात पढ़ो, जितना चाहो पढ़ो जुमा से खुतबा से पहले। लेकिन खुतबा के बाद 4 रकात सुन्नत है मेरे भाइयों और दोस्तों। बहुत सारे सहाबा करम 2 रकात मस्जिद में पढ़ते हैं, 2 रकात जाके घर में पढ़ते हैं, 2 रकात मस्जिद में पढ़ते हैं, 2 रकात घर में पढ़ते। बहुत सारे ऐसे सहाबा होते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो 4 रकात मस्जिद में ही पढ़ लेते थे। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और हम इस तरह कूदते भागते हुए, नीचे भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उनको हम कूद करके भाग करके इस तरह निकल जाते हैं, इतनी भीड़ लगा देते हैं। और सीढ़ियों में बच्चे बड़े सब होते हैं, अगर कोई गिर जाए मेरे भाइयों और दोस्तों क्या होगा। और मैं आपको बता दूं इस तरह की सीढ़ी है, थोड़े लोग इधर से भी निकल जाए, थोड़े लोग उधर से भी निकल जाए, आसानी हो गया हम लोगों के। तो आइए मेरे भाइयों और दोस्तों, मुनाफिकीन से जब सवाल किया जाएगा मन रब का बता तेरा रब कौन है, तो वो मुनाफिकीन कहेगा कि दुनिया में जो लोग कहा करते थे मैं भी वही कहता था, अब तो मुझे पता नहीं है कि मेरा रब कौन है। दुनिया के अंदर लोग जो कहते थे मैं भी वही कहता था, अब मुझे मालूम नहीं। पूछा जाएगा माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, फिर वही जवाब के दुनिया के अंदर जो लोग कहते थे वही मैं कहता था, अब मुझे कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं। कहा तेरा नबी कौन है, तो उसने भी वही जवाब देगा कि दुनिया के अंदर जो लोग कहते थे वही मैं कहता था, और अब मुझे कुछ भी पता नहीं, मालूम नहीं है। चुनांचे इस मुनाफिक और मुनाफिकीन के साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा, ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम कब्र की अजाब से पनाह मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और हम आखिरत की तैयारी करें। ये दुनिया की मुसीबत मेरे भाइयों और दोस्तों कुछ भी नहीं है, मामूली है, कुछ भी नहीं है। दुनिया की मुसीबत हम किसी तरह झेल सकते हैं, मगर जैसे ही हमारी मौत का टाइम आ जाता है, उसी वक्त से हमारी जो तकलीफ होती है, आखिरत का सफर बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए आप दुनियावी जिंदगी में जो आप इस तरह दौड़ भाग कर रहे हैं, आखिरत को आपने बिल्कुल भुला दिया है, जबकि असली घर हमारा वही है और वही हमें जाना है, दुनिया में रहना नहीं है। हम रोजाना हम अपने कंधों पर कितने कितने जनाजों को उठा करके कब्रिस्तान तक हम खुद ले जाते हैं, लेकिन आपको पता है जब हम उसे दफन करके वापस आते हैं, ये कब्र हमें चीख चीख करके पुकारती है, ऐ दुनिया के गाफिल इंसानों, आज जिस तरह तुमने अपने भाई को लेकर के कब्र में दफन किया है, कल तुम्हारी भी बारी होगी, आज तुम्हें भी लोग अपने कंधे पर उठा करके ले आएंगे और कल तुम्हें भी इसी कब्र के हवाला होना पड़ेगा। चुनांचे कब्र चीख चीख करके पुकारती है कि दुनिया में तुम इस तरह गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो, कल तुम्हें भी आना पड़ेगा, तुम्हारा भी टाइम अब समाप्त होने वाला। भाइयों दोस्तों, फिर बातें हैं इंशाअल्लाह, फिर बाद में बयान किया। ये अभी मैं आपके सामने बड़े अदब एहतराम के साथ अर्ज़ मारूफ करना चाहता हूं।